In the previous topic, we understood about chloroplast. Where is chloroplast located? You'll all be able to answer it. Chloroplast is located in which cell of a leaf? It is located in the mesophyll cells. So we all are at page number 138. Now let's write down certain questions. Which gas reaches through stomata? So the answer is, find out the answer. Second, what reaches through veins? When you read chloroplast, you'll get all the answers. Then next question. In higher plants, what is the shape of chloroplast? And every chloroplast is made up of how many membranes? And though previous topic we have done, mitochondria is also like that. So chloroplast is, what is the shape of chloroplast? And it is made up of what kind of membrane? What is present inside the chloroplast? The structure present inside, or that structure which has all the main substance in it. So जो main constituent है, you have to write what is present inside the chloroplast. When you label the chloroplast, the base, or you can say the ground substance, okay, found in chloroplast. Okay, next question. What is arranged in the form of stacks? ऐसा लगेगा कि बोरियां रखी हुई हैं. What is arranged in the form of stacks? So the answer you'll find out. An individual sack is called as a. अब आप count करोगे. For instance, let's go to this diagram here. This is 1, 2, 3, 4, 5, like that it is arranged, right? So this arrangement, this single structure of many sack together, what is it called? You should be knowing that. Next is, what are the, this you have to learn, okay? What are the names of the pigments present in the क्लोरोप्लास्ट? हम बार बार बोल रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स ज़रूरी हैं. सो विच आर दोज पिगमेंट्स दैट इज एसेंशियल? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the energy molecules that are formed out of solar energy? So you have to write the names of the two. You have to write the full form also. So you're going to do Google search and write down the full form of it. I believe this diagram is very much clear. You've already done. Now let's see. What are the types of chlorophyll? अब chlorophyll जो है उसके बहुत सारे types है, but for your topic or for your syllabus, you just have to remember there are two types of chlorophyll. One is A and B, and how is it different? In between, or we can say middle structure जो कि A का है, उसमें मिथाइल ग्रुप है, लेकिन जो क्लोरोफिल बी का मिडिल स्ट्रक्चर है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है. सो इफ अ क्वेश्चन कम्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट? यू कैन राइट दिस क्वेश्चन अगेन, अ क्वेश्चन, differentiate between chlorophyll A and B. So in spite of the porphyrin ring, it has something special in the center. What is that something special? It is a group. One is the methyl group and another is the aldehyde group. Then next question, carotenoids are usually what colored pigments? Carotenoids
जो पौधों में कलर देता है कौन सा? ये तो क्वेश्चन बिना रीड करे यू शुड बी एबल टू आंसर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास. ओके, now the two types of carotenoids is carotene and xanthophyll. You should be knowing it. And this formula, basic formula of carotene: xanthophyll contains oxygen, carotene can be written like this. Okay, next question. This is something which you are going to do in your practical for your 12th standard, but फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. Spinach leaves. Okay, we are going to see this activity first. Okay, spinach leaf को लिया, एक मिनट के लिए we'll understand. Now we just ended with activity 1. What did we say? Activity 1 में हम spinach leaves को, let's take a pen over here with the color. हाँ, हमने क्या लिया? Spinach leaves, right? So spinach leaf is something that is a leaf which has all the main pigments. हमने पढ़ा which are the main pigments. So we are supposed to segregate those pigments. पत्तों के अंदर सारे pigments एक साथ रहते हैं, right? अब उन pigments को अलग करने के तरीके को बोलते हैं, ये जो हमारा तरीका, what you call it? Paper chromatography. What do you call it? पेपर की हेल्प से हम लोग सेपरेट करते हैं, क्रोमैटोग्राफी. दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट, वी आर गोइंग टू डू इट फॉर अ नेक्स्ट स्टैंडर्ड. सो यू शुड बी नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ पेपर क्रोमैटोग्राफी. लेट्स सी व्हाट ही इज. This here too, which act as a buffer. So what did we take? This is mortar, this container जिसके अंदर कूटा जा रहा है. ओके, you have mortar and pestle. इसके अंदर spinach leaves को, मतलब पालक के पत्ते को, along with which chemical? Acetone. एसीटोन इसलिए क्योंकि एसीटोन एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज़ करके उसको ग्राइंड कर रहे हैं. ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों यूज़ किया है? यू शुड बी नोइंग, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड. मैग्नीशियम क्लोराइड का फ़ायदा क्या है? जब आपको कोई चीज़ कूटना होता है, इफ़ यू पुट सम ग्रैन्यूल्स, ओके, ग्राइंड करने में ईजी होता है. सो अभी लीफ को ग्राइंड करने में इट विल बी ईजी. सो नाउ वी हैव टेकन अ मुस्लिन क्लॉथ जिसके अंदर वो जो मिक्सचर हमें मिला है उसको हम डाल देंगे. इट विल बी फिल्टर्ड. लीफ का जो मिक्सचर है. Now this extract we have got from the mortar and pestle. अब इस एक्सट्रैक्ट को हम क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफी पेपर जिसको हमने कट किया है, जिस फिल्टर पेपर, इसको हम इस शेप में इसलिए कट करेंगे क्योंकि हमें बाद में उसे एसीटोन के अंदर डिप करके रखना है. वी हैव अ सोल्यूशन. ओके, इट हैज़ 2 फेस. वन इज स्टेशनरी फेस. ये पेपर जो है वो स्टेशनरी फेस है, बट जो लिक्विड है इसके अंदर मूव करेगा तो दैट विल बी द मूविंग फेस. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस कंटेंट एंड वी आर गोइंग टू मार्क अराउंड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द टिप. और फिर हम एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे. कैपिलरी ट्यूब में हमने जो एक्सट्रैक्ट ग्रीन पिगमेंट, दैट मीन्स वो लीफ का जो एक्सट्रैक्ट मिला था उसको हमने लिया. सी, एंड देन वो प्लेस इट ऑन द फिल्टर पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर जिसको हम बोलते हैं. वी आर गोइंग टू प्लेस 1 ड्रॉप ऑन इट. अब इसको ड्राई करेंगे. 1 ड्रॉप डाल दिया. अब इसको ड्राई करेंगे और ऐसे ही कम से कम 5-6 बारी करेंगे ताकि वहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए.
right? We'll do it like this for 5 to 6 times. बार बार डालेंगे उसका concentration को बढ़ाने के लिए. अब इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम डिप करके रखेंगे एक सॉल्यूशन के अंदर. You should be knowing that solution. What is inside that solution? Acetone and petroleum ether. See, this is a solution, it's been taken, petroleum ether, okay? 90% petroleum ether and 10% acetone. उसके अंदर डिप करके रखेंगे. They take a cork. I'm going to show it in the lab also, the same activity. cork के help से उस apparatus के अंदर arrange करके we can place it inside the acetone. Now what will happen after some time? This will be dipped in slowly. Acetone को use किया तो उससे क्या होता है? There will be movement here with the liquid. जो पिगमेंट्स इसके अंदर एक साथ थे ना, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. एंड यू विल ऑब्जर्व दैट सेपरेशन. नाउ कैन यू सी द सेपरेशन? लेट्स पॉज इट ओवर हियर. दिस सेपरेशन इज गोइंग टू बी इन 4 फेज. इसमें इतना क्लैरिटी नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग it has got 4 different pigments that's shown here. So today we understood how to separate these pigments. कौन से pigments? ये जो pigments हमने यहाँ मार्क किए, इन pigments को हमने कैसे separate किया using paper chromatography. Okay? Now there is a common question. What solution is used inside? पेट्रोलियम ईथर और एसीटोन होना चाहिए. पेट्रोलियम ईथर का रेशियो कितना होना चाहिए? 9. अगर 10 मिलीलीटर है तो 9 ml पेट्रोलियम ईथर होना चाहिए, 1 एंड बाकी का 1 ml एसीटोन होना चाहिए. ठीक है. एंड जार के अंदर टाइटली रखा तो बाद में क्या ऑब्जर्व हुआ? पिगमेंट्स अपने आप सेपरेट होते हैं. ये भी अब याद करना होगा आपको. सबसे ज़्यादा, सबसे फुर्ती से, सबसे आगे रेस होगा वहाँ पे पिगमेंट का. ठीक है. सबसे ऊपर आपको मिलेगा कैरोटिनॉइड, उसके बाद बाकी के ज़ैंथोफिल, देन क्लोरोफिल बी एंड देन ए एंड देन बी. ओके, सो दैट इज़ सेपरेशन. वी आर गोइंग टू डू इट इन द एक्टिविटी. बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the next topic. Let's see what it says. Page number 139 में देखिए. All photosynthetic plants have these pigments that absorb light between the red and blue region of the spectrum. अब ये क्या है? लाइट के अंदर रेड एंड ब्लू. अब हम अगर रेनबो की स्ट्रक्चर बनाएंगे, you've seen a rainbow, right? Rainbow has always like this. This is what you have learned. हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है. दीज आर द कलर दैट्स ऑलवेज पार्ट ऑफ द रेनबो, राइट? जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है. तो लाइट इज़ एन एनर्जी. लाइट क्या है? इट इज़ एन एनर्जी जो कि ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. जो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. अब ये सारा लाइट है, यहाँ से लेकर पूरा जो स्पेक्ट्रम है, ये सारा लाइट है. उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, उसको हम कहेंगे विजिबल पार्ट. व्हाट डू यू कॉल इट? आई एम सॉरी, लेट्स जस्ट शो इट हियर. लेट्स सी, देयर इज अ क्वेश्चन हियर. राइट डाउन अ क्वेश्चन. व्हाट इज अ विजिबल लाइट? द स्पेक्ट्रम, वो हिस्सा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, मतलब फ्रॉम 390 to 730 नैनोमीटर. ओके, सो द लाइट दैट इज विजिबल ranging this part of spectrum is called as visible light, which lies between. अब ये visible light किसके बीच में है? इसके, अगर हम इसे देखेंगे, एक अल्ट्रावायलेट के पीछे और दूसरा इंफ्रारेड. सो यूवी रेस और इंफ्रारेड दोनों के बीच में जो लाइट है, that's called visible light. And what is the range of visible light? It's been asked many times. You should be knowing 390 nanometer to 730 nanometer.
Next is absorption and action spectrum. What is absorption spectrum? जो लाइट absorb हो जाती है, the lights which are absorbed, that's called absorption spectrum. हर wavelength में there are certain lights that gets absorbed and certain lights are visible. अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं. सबसे ज़्यादा यहाँ देखो ज़रा इस डायग्राम में क्लोरोफिल ए कौन सा कलर का है? ग्रीन कलर. सो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कर रहा है वो, और जो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज़ द ग्रीन पार्ट दैट इज़ बीन रिफ्लेक्टिंग हियर. सो दैट्स द रिफ्लेक्शन. Okay, now let's talk about the action spectrum. When you are saying सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, अभी हम लोगों ने ये लाइट जब देखा, इसके अंदर कुछ हिस्सा ऐसे है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत फुर्ती से होता है, कुछ हिस्सा ऐसे है जहाँ फोटोसिंथेसिस बहुत डल होता है. यू मस्ट हैव हर्ड नो, अगर सनलाइट बहुत अच्छा है तो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट. Now, why is it so? It is because of the spectrum, that helps in the rate of photosynthesis. अब यहाँ पे absorption spectrum दिखाया हुआ है, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है लाइट का ब्लू रेज में. यहाँ देखो ज़रा इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा. ब्लू, इंडिगो, दिस रीजन में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाकी ग्रीन रीजन में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है. राइट? सो यू शुड बी नोइंग, वेव्स जब बनाते हैं अब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है? इन दिस रीजन. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन स्पेक्ट्रम, कहाँ ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? सेम, इन द इनिशियल एंड एट द एक्सट्रीम. मतलब इन द 400 नैनोमीटर, मतलब अराउंड वायलेट इंडिगो में, और या तो रेड. सबसे ज़्यादा वायलेट इंडिगो में होता है एक्शन भी. दिस हैज़ टू बी नोन टू यू पीपल. ये क्वेश्चन कई बार ही आता है, सो ये पैराग्राफ ज़रा अच्छी तरह पढ़ो. Action spectrum of photosynthesis differ from absorption of spectrum. There is quite a lot of photosynthetic activity. मतलब photosynthesis बहुत ज़्यादा होता है. कहाँ पे होता है? जहाँ ज़्यादा absorption होता है लाइट का. राइट? Okay, next is a very important topic, mechanism of photosynthesis. I think this we are going to do in our next lecture.